Acha, Assalamu alaikum. You most of the you guys are working on PR1 gene. Okay. So today I will tell you about what is a cap domain. What is the difference between the motif and domain? You guys already know. Domain is a tertiary structure of the protein. Motif is the secondary structure of the protein. Okay. So now there is a question that what are the different types of motifs and what are the different types of domains that are present in PR1 protein. Okay, so for that purpose we need to understand what is PR1, why it contains cap, what is the characteristics of cap, how we can classify the gene family members using the cap domain. So these are all the questions that comes into your mind when you talk about motif and domain analysis. If you are working on a specific crop, specific gene, you need to understand that. So what is the PR1 proteins? PR1 proteins are the proteins that actually expressed when there is a pathogen attack. This is the one of the function of the PR1 protein. What happened to the plant when there is a pathogen attack? PR1 protein is expressed. Okay, they call that this is a marker. This is a marker. What does marker mean? Okay, अब मार्कर ये है कि हमें मार्क करने के लिए ना। ओके, अगर हमें ये पता हो कि यहाँ पर मशीन्स हैं, यहाँ पर it indicates कि there will be an electricity. Machine can be a marker for अजहर। अगर इधर मशीन्स है, इलेक्ट्रिक मशीन्स है, तो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, बिकॉज देयर इज एन wherever we can find machine, this is a marker for electricity, this is a marker for ऐसे ही है। अगर हम यहाँ पर कोई एक चार्ट लगा हो, if there is a chart that indicate that there is a breeding happen, it means this is the indicator or marker that there must be a plant breeding and genetics department near. If there are landscape design are there, it means this is a marker indicator that there must be a horticulture department there. So it means if to find someone else, you need to develop some marker. If we say that there is a gene structure here, we can see that there is someone who is working on genetics or molecular biology or biotechnology. So similarly, if we say that if in a pathogen, this gene is expressed, and this gene is already known that this gene is defense related genes in other plants. If in some plant, if this gene is expressed, this indicates that this could be this gene, this plant could be resistant to pathogen. हम कह सकते हैं कि ये जो प्लांट होगा उसके अंदर एक जीन है PR1, अगर वो एक्सप्रेस हो रहा है, इट मींस ये जीन रेजिस्टेंट करेगा पैथोजन। ये मार्कर है। PR1 इज अ इंडिकेटर, PR1 is a indicator that this plant will definitely resist to, if we have 10 varieties of tomato, out of 3 varieties, 3 out of 10 there is the PR1 gene expression is high. This indicates that these 3 varieties can be a resistant to pathogen. ऐसे ही है, ये मार्कर है। ये क्या हो जाएगा? मार्कर। दिस इज अ मार्कर के दैट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई, टू ट्रेस। अगर हम कहते हैं कि हमने एक चीज है, वो कहते हैं ना कि कल परसों में एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि लोगों ने एक बॉटल फेंकी समुद्र के अंदर, तो पता चला कि पूरे दुनिया के अंदर जो समुद्र में ना जहां भी बोतल फेंकते हैं ना, बल्कि इंडियन ओशन है, तो वो सारी प्लास्टिक बोतल एक ही जगह जाकर जमा हो जाती हैं। चाहे वो जद्दा में फेंके तभी वो एक ही जगह जाकर फेंक,
इफ अगर हम कराची से फेंके, मुंबई से फेंके, तो दे ऑल प्लास्टिक बॉटल दे भी एक ही जगह जाकर हम कह सकते हैं कि दिस इज द पॉइंट वेयर मार्कर है, जो कि जहां पर बॉटल बॉटल कलेक्ट होती है, जहां पर फिर वहां से हम वो माइक्रो प्लास्टिक्स को हम उसको सिमिलरली इस तरह के दुनिया के अंदर 7-8 पॉइंट है। पूरी दुनिया के अंदर देर आर 7 to 8 पॉइंट्स वेयर इन द सी वेयर द प्लास्टिक बॉटल्स आर, वेयर यू कैन फाइंड मिलियंस ऑफ बॉटल्स ऑफ प्लास्टिक्स। ओके, वो एक ही जगह जाती है, मार्कर है। इट मीन दिस इज अ पॉइंट फॉर प्लास्टर आइडेंटिफिकेशन, मार्कर, यू कैन से दैट। अब मार्कर की समझ आ गई है कि अब हमने ये मालूम करना है कि हमारी जो जो वैरायटीज है उनमें से 10-12-15 जो वैरायटीज है उनमें से कौन सी दैट विल बी रेजिस्टेंट टू पैथोजन। हम अर्ली स्टेज के ऊपर ही हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम अर्ली स्टेज, अभी जस्ट सीडलिंग स्टेज के ऊपर ही अगर हम जस्ट उनका आरएनए आइसोलेट करें और उसमें से उसको ऊपर पैथोजन का थोड़ा सा अटैक करवाएं और देखेंगे इफ देयर इज अ PR1 gene is expressed, it means these varieties can be grown further for further analysis, और बाकी पौधों को हम फील्ड ट्रायल में नहीं लेके जाएंगे। या if we have a PCR primer that is linked to that specific gene, we can easily identify the plant at just seedling stage without doing any field trial that this crop will be resistant to that pathogen। समझ आ गई? This is known as marker assisted selection. This is known as, for marker assisted selection we need, if there are two, हमें पहले हम genome analysis करेंगे और उनमें से फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि which are the genes that could be used in further breeding program, which based on that analysis we will identify the, like अगर हमारे पास बच्चे हो, हमारे पास 5 वैरायटीज हैं और 5 के 5 वैरायटीज का जीनोम सीक्वेंस हुआ हुआ है, 5 की 5 वैरायटीज हैं और उनका जीनोम सीक्वेंस हुआ हुआ है। हमने देखा जो PR1 है ना, जब CAP1, अच्छा हमने देखा कि कैप्सिकम एनम वैरायटी जो खर्च किया उस वैरायटी का नाम है ए, ठीक है। और फिर दूसरी वैरायटी है उसके अंदर भी कैप्सिकम एनम बी CAP1, कैप लिखना था, सॉरी यार, तो पता नहीं है तो कैप, ठीक है, कैप, ठीक है। अब ये एक वैरायटी के अंदर CAP1 ये है, एक वैरायटी के अंदर CAP1 ये है। अब तीसरी जो वैरायटी है ना उसके अंदर CAP1 जो है ना वो ये है। हमने देखा कि ये वाला जो CAP1 है ना, इस वैरायटी के अंदर ये रेजिस्टेंट है और जब ये जीन एक्सप्रेस होता है तो प्लांट के अंदर डिजीज नहीं आती, ठीक है। लेकिन ये और ये जब जीन एक्सप्रेस होते हैं तो ये रिसेसिव है, ये क्या है, एक्सप्रेस भी होते हैं लेकिन फुली रेजिस्टेंट नहीं है। इट मीन दिस वैरायटी हैज अ जीन दैट इज रेजिस्टेंट। अब इसके अंदर एक खास म्यूटेशन आई हुई है, फर्ज इन तीनों के अंदर एक जगह पर म्यूटेशन है, एक स्निप है जिसको हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब इस वैरायटी के अंदर उसके ऊपर हमने प्राइमर डिजाइन कर लिया, PCR बेस्ड प्राइमर का, तो पता है आपको, प्राइमर डिजाइन कर लिया जब, लेकिन ये जो वैरायटी रेजिस्टेंट तो है लेकिन लो यील्डिंग है, ये वैरायटी रेजिस्टेंट नहीं है, हाई यील्डिंग है, लेकिन इसके अंदर इसी की एक रिसेसिव फॉर्म है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में क्रॉस करवा के और वो जो ब्रीडिंग मार्कर सिस्टम ब्रीडिंग करवाते हैं, इट मीन वी कैन यूज जीनोम एनालिसिस आल्सो टू आइडेंटिफाई द markers that are present inside the genome, ठीक है। और उससे हमें काफी हद तक समझ आ जाएगी कि कैसे हम, अच्छा अब ये जो डिफरेंट पैटर्न हैं वो हमें कैसे पता चलेंगे, व्हेन वी विल डू द
motif and domain analysis, but we do and domain analysis. अब समझ आएगी what is the PR1? Why we are studying PR1? Because this gene is very important because it's a defense related protein. If one plant has the highest expression of this and the plant is also resistant, it means that this indicates that if the expression of that gene is some variety is higher, it means that that plant will be resistant to that pathogen. अब next question is that how to identify वो कैप डोमेन के अंदर ऐसा क्या होता है, वो मैंने बताया था कि इसके अंदर दे हैव सिस्टीन रिच सेक्रेटरी प्रोटीन है, सिस्टीन रिच होती है और सेक्रेटरी प्रोटीन है और एंटीजन 5 इसके अंदर दूसरा जो मोटिव होता है, इसके अंदर 3 मोटिव हो कह सकते हैं इस डोमेन के अंदर ना, एक सिस्टीन रिच सेंसरी प्रोटीन अलॉन्ग विद एंटीजन 5 मोटिव्स PR1 डोमेन। ठीक है, ये तीनों चीजें होती हैं इसके अंदर ना, इसलिए इसको कहते हैं कैप डोमेन। अब फाउंड इन डाइवर्स यूक्रियोटिक्स प्रोटीन, इट्स नॉट ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स बट आल्सो प्रेजेंट इन सम अदर eukaryotes like algae, fungi, or some other crop as well, or in human as well. Okay, and this is characterized by a conserved cysteine residue forming disulfide bond. What is disulfide bond? दो सल्फर के बीच में बॉन्ड जो होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं उसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एंड लाइगेंड बाइंडर। अब लाइगेंड क्या होता है? ये सर एक तो एल्गी और फंगस के बीच में वो लाइगेंड होता है। लाइगेंड फर्क क्या? ये है, ये है, ये लाइगेंड है, लाइगेंड है, ये फंगस है, ये है फंगस, इसको बाइंड करना है, ये लाइगेंड होगा। ये कैप जो डोमेन है ना, वो कैप डोमेन इसको बाइंड करके, ये काइटिनेज है, ये कैप इसको बाइंड करती है फंगस की सेल वॉल को और इसको डिग्रेड कर देती है। अब फंगस की सेल वॉल क्या होगी? लाइगेंड। ठीक है, फर्ज के मैं इसको बांधता हूँ, इसको तोड़ देता हूँ मैं, अब मैं आपको ऐसे पकड़ता हूँ, ये लाइगेंड होगा आपका, जो ये वाला ना, मेरा हाथ कैप डोमेन है, आप तो एरिया है और आपको मैं, ओके समझ आ गई? तो इसे कहते हैं लाइगेंड। लाइगेंड which means ये ligand की stability जो है that is very important, that is present inside that cap. Why it is called a resistant protein? Because it kills the pathogen, it kills the pathogen, or it या इससे कोई ऐसी वो क्या करता है जो भी है। अच्छा, रोल बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है डिफेंस रिस्पांस अगेंस्ट फंगल बैक्टीरियल एंड वायरल पैथोजन एंड इट लिंक्ड विद सैलिसिलिक एसिड सिग्नलिंग। ये ऑलरेडी मैंने बताया था कि जब सैलिसिलिक एसिड का लेवल हाई होता है तो PR1 का लेवल हाई हो जाता है। ठीक है, इट्स अ की बायोमार्कर फॉर प्लांट डिफेंस एक्टिवेशन। अब क्वेश्चन ये है कि अब आपने कैसे इसको फाइंड आउट करना है कि कैसे कंजर्व CAP डोमेन आपको कैसे पता चलेगी। उसके लिए हम परफॉर्म जेनोमाइड एनालिसिस करते हैं, अमीनो एसिड मोटिफ एंड कंजर्व डोमेन इसका ढूंढते हैं और फंक्शनल रिलेशनशिप अमंग, इसके लिए डिफरेंट ये डेटाबेसेस हैं जो ऑलरेडी नो दैट हाउ टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम ऑल दीज डिफरेंट डेटाबेसेस। ठीक है, उसके बाद है टूल्स यूज होते हैं। अच्छा, ये देखे ना कंजर्व सिस्टीन पैटर्न, C 3 अमीनो एसिड, अगेन C 3 अमीनो एसिड, अगेन C ठीक है, तो इट मीन दीज ऑल दिस पैटर्न शुड बी इन योर सीक्वेंस। भी एक C आए, सिस्टीन आए, फिर 3 अमीनो एसिड्स आए, फिर सिस्टीन आए, फिर 3 अमीनो आए, फिर सिस्टीन है, न्यूक्लियोटाइड ये अमीनो एसिड्स है। सिस्टीन ये वो साइटोसिन वो जो नहीं है, ये सिस्टीन है। ये क्या है? सिस्टीन पैटर्न्स इन अमीनो एसिड्स। ठीक है, सीक्वेंस लॉगो जनरेटेड हम इसको कर सकते हैं, विजुअलाइजिंग कंजर्व व्हाटएवर वो मैं बता दूंगा आपको कैसे करते हैं। फिर इसके लिए मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट है, GSDS, वो तो सारा। अब कैप डोमेन इज हाईली कंजर्व्ड इन PR1 प्रोटीन्स। अच्छा, इसके लिए ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर। अब है क्वेश्चन ये है कि हाउ टू मेक, क्या करना है हमने मोटिफ, अब क्या करना है हमने मोटिफ एनालिसिस। मोटिफ एनालिसिस के लिए आपने क्या करना है कि आपने मुझे अपनी PR1 प्रोटीन भेजे,
चलें जी, मैं देख लेता हूँ इधर अगर कोई पड़ी है। ये हिजबुल्ला PR1 एपल फर्ज किया, and this is cab rename. Okay, so this is Malus domestica, Malus domestica cab। ठीक है, अब आपने इसको कंट्रोल A कॉपी, and you will go to motif meme analysis, you will go to the internet and motif, search motif meme and goes there। ओके, रीनेम फाइल है, ये फर्स्ट वाली फॉर्म में। हाँ, रीनेम फाइल, फिर आपने यहाँ पर मेमे में जाना है। मेमे, ये क्या है? ये लाफिंग। ओके, अब नाउ यू विल टाइप इन सीक्वेंस हियर एंड पेस्ट हियर। ओके, एंड पेस्ट। और उसके बाद आपने ना यहाँ पर 10 मोटिफ कर लेने, कितने? 10। और इसको आपने स्टार्ट सर्च कर देंगे। इट विल टेक 3 to 4 minutes एंड यू विल गेट द फाइल। ओके, एंड सिमिलरली जब ये पूरा हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, तो फिर आपने इसको कैसे इसको जो देखना है ना, उसके लिए आपने टीवी टूल में जाना है। कहाँ जाना है? ये आ गया, ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसका जो XML आउटपुट है ना, इसको सेव एज करना है। सेव लिंक एज, XML आउटपुट सेव लिंक एज, राइट क्लिक, सेव लिंक एज। आपने और आपने अपने फोल्डर में चले जाना है PR1 के, हिजबुल्ला PR1। और यहाँ पर मैंने इसका ऑलरेडी मेमे ये सेव किया हुआ है हमने, लेकिन मैं नया भी ये मेमे सेव कर रहा हूँ। ठीक हो गया, सेव हो गया। अब आपने क्या करना है कि अब आपने इधर जाना है टीवी टूल में, और यहाँ जाके आपने ग्राफिक्स में जाके शो जीन ऑन क्रोमोसोम में, नहीं यहाँ नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ नहीं जाना। अब ग्राफिक्स में जाना है, बायो सीक्वेंस स्ट्रक्चर व्यू में जाना है। यहाँ यहाँ आप जाएंगे, आपने हिजबुल्ला 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 PR1, किधर आ गया? PR1 हिजबुल्ला। अच्छा, अब यहां पर आ गया, तो आपने ना ये मेमे इसको क्या करना है? कौन सा वाला? हाँ, ये वाला फर्ज के ये है ना, इसको आपने इधर कर देना ड्रैग। ड्रैग कर देंगे तो ये फाइल आएगी, इसको क्लोज कर देना, इसको स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास, सॉरी ऐसे नहीं करना, सॉरी सॉरी, आपने एक और काम करना है इसके अंदर। क्या काम करना है कि इसको हमने इसके अंदर ऐड तो कर दिया, इसमें मोटिव नंबर भी ऐड करने थे, सॉरी। ठीक है, और इसमें साथ में अगर ट्री भी ऐड कर दें, इसको ट्री बाद में ऐड करते हैं। अच्छा, फिलहाल आपने ये चीज ऐड कर दी, समझ आ गई? ये हमारे पास आ गया मोटिव एनालिसिस। ये क्या हो गया? मोटिव एनालिसिस। अब इसका मतलब ये है कि डिफरेंट जो मोटिव्स है ना, इसके अंदर वन है, वन किस किस के अंदर है, टू किस किस के अंदर है, थ्री किस किस के अंदर है, कौन से ऐसे मोटिव्स हैं जो सबके अंदर है। तो वो हमें ये एनालिसिस हमें बता देगा कि विच मोटिव्स आर प्रेजेंट इन। अच्छा, अब आपने इसके साथ एक और चीज कंबाइन करनी है। ये तो हो गया ना मोटिव एनालिसिस। अब आपने इसके अंदर ना फाइलोजेनेट ट्री ऐड करना है। क्या करना है? फाइलोजेनेट ट्री। फाइलोजेनेट ट्री ऐड करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने इसी सीक्वेंसेस, सिर्फ इसी सीक्वेंसेस का न्यूविक ट्री बनाना है। ठीक है, मुझे न्यूविक ट्री तो बनाना आता है आप लोगों को। आपने क्या करना है कि शायद हिजबुल्ला का इधर पड़ा हो न्यूविक ट्री। मेगा से दोबारा दिखा देते हैं आपको। ये मेगा में गया है, ठीक है। आपने क्या करना है कि अलाइन में जाना है, पहले एडिट बिल्ट अलाइनमेंट करनी है, फिर आपने क्रिएट न्यू अलाइनमेंट, ओके। और फिर आपने प्रोटीन को क्लिक कर देना है, और फिर आपने इधर पेस्ट कर देना है, और वही एक ही क्रॉप का, आपका अपनी क्रॉप का ही करना है यहाँ पर। अगर आप मोटिफ एंड मेमे एनालिसिस दो का क्रॉप का करें तो दो का बनाएंगे,
अगर 4 का कर रहे हैं तो 4 का बनाएंगे। ये हमने वो प्रोटीन सीक्वेंस पेश किया है। ना वो रीनेम वाली प्रोटीन सीक्वेंस, अगर आपने 4 क्रॉप का कर रहे हैं तो इकट्ठा चारों का करेंगे, अगर एक क्रॉप का कर रहे हैं तो एक का ही ट्री बनाएंगे। ओके, अब आपने इसको अलाइनमेंट में जाना है, अलाइन बाय मसल करके आपने इसको सिलेक्ट ऑल करेंगे और ओके कर देंगे डिफॉल्ट पैरामीटर्स के थ्रू। ठीक है, अब आपने इसको सेव कर लेना है, एक्सपोर्ट अलाइनमेंट एज फास्टे फॉर्मेट। आपने इसको वो जो है PR1 जो है, आपने इसको उसी फाइल में सेव कर देना है और इसको कह देना अलाइनमेंट। ठीक है, और इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब आपने इसको कैंसिल कर देना है। अब आपने फाइलोजेनी में जाना है, मैक्सिमम नेबर ज्वाइनिंग में जाके अलाइनमेंट में जाएंगे और इसको प्रोटीन को क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे और यस कर देंगे, और इसको हम 1000 बूटस्ट्रैप के साथ, ये ऑप्शन नहीं आती बूटस्ट्रैप पे आप जो हर जगह आती है। अब इसको आप ऐसे करेंगे तो बूटस्ट्रैप के साथ वैल्यू ये देखे ना, आ गया, ब्यूटीफुल ट्री इज देयर। अब आपने इसका न्यूबिक ट्री लेना है और इसके अंदर बूटस्ट्रैप वैल्यू को ऐड कर देना है और ओके कर देना है। अब हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई, इसको आप सेव भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इसकी ज़ाहिर है वो चाहिए PR1, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमें काम करना पड़े तो वी डोंट नीड। ठीक है, न्यूविक। अब आपने इसको कंट्रोल A कॉपी किया, इधर भी कॉपी की ऑप्शन है वैसे, और इसको आपने उसी टीवी टूल में जाके, नहीं टीवी टूल में जाना है, अब आपने इसी जगह वहां पर हमने वो ऐड, यहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर दिया और इसको स्टार्ट करेंगे। अब मोटिव के साथ भी ऐड हो गया, पहले मोटिव के साथ ट्री नहीं था, अब मोटिव के साथ ट्री भी ऐड हो गया। ठीक है, अब ये हमें ग्रुपिंग भी कर देगा कि कौन से जो 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 इसको ना हम कर सकते हैं। अच्छा, फर्ज किया अब हम चाहते हैं कि इस ट्री को ना थोड़ा सा खोला जाए, इसके अंदर ऑप्शन भी होती है कि मुझे लगता है कि इसके अंदर ऑप्शन है, नहीं ऑप्शन, पिछले पेज में। नहीं नहीं इधर नहीं है। अच्छा, इसके अंदर ऑप्शन तो होती थी वैसे, चले शायद अब नहीं है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर इसके अगर हम इसको रीडू करें, नहीं भी है तो इट्स ओके। अब हमने ना इसके अंदर डोमेन एनालिसिस भी ऐड करना है, अब हमने इसके अंदर नाउ वी आल्सो वांट तो सो दैट जितनी कंपैक्ट बनेगी, एक ही पेज के ऊपर ज्यादा एनालिसिस हो जाएंगे, दैट्स गुड, दैट इज, आप लोगों ने ये काम करना है। ठीक है, आपने अपने मोटिव एनालिसिस भी करने हैं, डोमेन एनालिसिस भी करने हैं, आज आपने मुझे करके दिखाने हैं। ठीक है, ऐसे ही आपने पहले ये करना है और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि इसके अंदर आपको क्या चीज ऐड करनी है, डोमेन। डोमेन एनालिसिस के लिए अब आप ये मोटिव एनालिसिस ऐड हो गया, कर लेंगे। अब आपने दोबारा यहाँ पर फिर आपने टीवी टूल में, जहां पर नहीं सर, दोबारा NCBI CDD में जाना है। कहाँ जाना है? NCBI CDD, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर होगी, क्लिक करेंगे तो CD सर्च का आएगा, CD सर्च बैच, CD सर्च बैच, ये यहाँ पर बैच में जाना है, होगी एक आपने सर्च करनी सारी प्रोटीन्स को। आपने उसकी डोमेन एनालिसिस, या ये जो कंजर्व डोमेन डेटाबेस है, ये क्या है, पूरी दुनिया जहां की जितनी भी प्रोटीन्स है उनका जो डोमेन है, उनका डेटाबेस है, उनका डेटाबेस है। आपने इधर इसको पेस्ट किया, वही नहीं सॉरी ये तो आ गया ना वो दूसरा। अब आपने यहां पर क्या पेस्ट करना है, ये प्रोटीन सीक्वेंसेस वही पूरी सेम सेम हर जगह आपने पेस्ट करनी है। अब यहाँ पर डिफरेंट डेटाबेसेस है, CDD भी है, PFAM भी है। अब CDD को भी कर सकते हैं, PFAM को भी कर सकते हैं, स्मार्ट को भी कर सकते हैं। वो कहता है ना स्मार्ट के थ्रू एनालिसिस किया, देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग, तो आपने ये वो सारे डेटाबेस इधर ही है। फर्ज कि हम पहले CDD से करके देख लेते हैं और फिर हम इसको सबमिट करवा दें। ठीक है, जब हम इसको सबमिट करवाएंगे तो वेरी इजीली वी कैन इसको, यहाँ पर एक फाइल आएगी, वो हिट डाटा वाली फाइल होगी। वो क्या होगी? हिट डाटा वाली एक फाइल होगी। आपने जस्ट इसको कंसाइज में ही डाउनलोड कर लेना है, कंसाइज में ही, ये 3 ऑप्शन है यहाँ पर, तो आपने सिर्फ कंसाइज वाला ही डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड हो गया हिट डाटा फाइल। अब आपने इस हिट डाटा फाइल को क्या करना है, यहाँ से कट करना है
और अपने उसी फोल्डर में ले जाना है जहां पर हिजबुल्ला वाला ना, ठीक है, और इधर ही इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन, ठीक हो गया जी। अब ये यहाँ पर हिट डाटा वाली फाइल आ गई। अब हमें यहाँ पर ना दो फाइलें चाहिए, एक रीनेम ऐप जो फास्टा वाली, और ये हिट डाटा, इसलिए मैंने इन दोनों को इकट्ठा किया है। अब आपने क्या किया कि उसी फाइल के अंदर ही पहले हमने की है, उसी के अंदर आपने अब जाना है CDD रिजल्ट्स में, यहां पर क्लिक करेंगे और ये जो हिट डाटा वाली फाइल है ऊपर अपलोड कर देंगे, ये ऊपर, और इसको क्लोज कर देंगे। फिर ये जो ऐप रीनेम वाली है ये नीचे, ठीक है, और इसको क्लोज कर दिया और इसको आपने कर दिया डन। अब डन करेंगे ना, आप इसको स्टार्ट करेंगे ना, तो हमारे साथ ये देखिए इन्होंने डोमेन भी ऐड कर दिया। अब इसने क्या कर दिया, दिस इज अ डोमेन एनालिसिस, दिस इज मोटिव एनालिसिस एंड दिस इज, तो इस तरह ये आपकी एक बहुत ही खूबसूरत आपकी ये फाइल बन गई। ओके, तो दिस इज योर, बस आपने इसको यूज कर लेना है पेपर के अंदर एज अ पिक्चर है, कट की फाइल ही बना लें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इसके अंदर इवन वी कैन कंबाइन इन दिस फाइल एज वो GSDS भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो भी मुझे नहीं आती इसके अंदर कैसे लोगों ने कंबाइन की हुई है। ये देखे ना, ये सारी चीजें इसको सेव कर ले आप, इसको सेव ग्राफ करना है तीनों फॉर्म में, एक PNG के फॉर्म में, JPEG सबसे अच्छी वाली, और PDF, इन तीनों फाइल में इसको सेव करके आपने इसको यहाँ पर आपका वो जो बना हुआ है ना फोल्डर, किधर है हिजबुल्ला, किधर है, यहाँ पर आपको पता होगा कि आपका फोल्डर कहाँ पर है। आपने फर्ज किया, मैंने फिलहाल इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ या सिट्रस के अंदर कर रहा हूँ, ताकि मुझे पता हो कि मैंने कहाँ डाटा सेव किया है। यार 1, ठीक है, इसको सेव कर दिया है तो अब वो वहां सेव हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको लिखना कैसे है, इसको लिखना कैसे है, इसके रिजल्ट्स कैसे लिखने हैं, इसकी डिस्कशन कैसे लिखनी है। इसके लिए अब हम आपको पेपर भेजा हुआ है एक आध, जिसको अंदर आपने उसको एडिट करना है। आपने एक बार भेजा वो कैसे नहीं शेयर किया था आपके सामने एक बार शेयर कर सर वो पेज है आपने ज्यादा वो शेयर करेंगे। चलिए मैं दोबारा कर देता हूँ भाई, माफ कर दो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दोबारा शेयर कर देता हूँ, लेकिन आपने वो जो शेयर किया हुआ मिला है तो आप उसी को एडिट करते जाए, उसी को एडिट करते जाए। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसको लिखना कैसे है, फर्ज किया, अब आप ना जिनोम वाइड वाला कोई भी पेपर ढूंढे, यहाँ पर लिखें जिनोम, नहीं, जिनोम वाइड PR1 प्लांट्स, ठीक है। अब वहां पर देखें, इन्होंने जिनोम नेचुरल पैथोजेंसिस रिलेटेड 1 प्रोटीन जीन फैमिली इन, वैसे इन्होंने ना गलत लिखा हुआ है, ये PR1 प्रोटीन नहीं लिखते, इसको कैप के साथ ही कहते हैं मेरे लिहाज से, ठीक है। अब इसमें पहले तो देखें मटेरियल मेथड में क्या लिखा हुआ, मटेरियल मेथड कैसे किया हुआ है, ये देखें ना, अभी ये तो पता ही है कि कैसे आपने लिखना है, कि आपने ये जिनोम डेटाबेस लिया, वो डाउनलोडेड जिनोमिक डेटाबेस PR1 प्रोटीन उसमें से सर्च की ब्लास्ट, ठीक है, और उसमें PFAM और इसको यूज किया, आपने इसको कॉपी कर लेना है। ऑलरेडी वो जो पेपर मैंने भेजा होगा उसके अंदर भी आपने इसको आपने एडिट कर लेना है, ठीक है। आपने यहाँ से वर्डिंग भी ले ले, या आपने उस पेपर के अंदर से आपने इसको फर्ज किया, ये वाला डाटा मैंने यहाँ से अच्छा, फिर ये कंजर्व मोटिव एंड जीन स्ट्रक्चर एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द कंजर्व मोटिव EME, ये मेमे यही यूज किया हमने, हमने एग्जैक्टली यही यूज किया है। मेमे was used to analyze the axon infrastructure which submitted the CDS, ये भी कर लिया। ये तीनों चीजें इन्होंने सब सेलुलर लोकलाइजेशन कई चीजें इकट्ठी इकट्ठी लिख दी है, ठीक है। अब आपने मटेरियल मेथड इजी हो गया आप लोगों के लिए लिखना, आपको उसको अलहदा हेडिंग दे ले, इकट्ठी हेडिंग दे ले, डिफरेंट हेडिंग दे ले, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि थोड़ा सा जो आपका जो है ना पैराग्राफ दूसरों से डिफरेंट लगे, दूसरे पेपर से, ये ना हो गया एग्जैक्टली आपने उसी को ही नकल लगाई है। समझ आ गई आपको, आपने इसको इस तरह कॉपी पेस्ट करके आपने अलग अलग कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसके रिजल्ट्स की तरफ जाना है। रिजल्ट्स के लिए क्या करना पड़ेगा,
अब आप इसको रिजल्ट्स में जाएं, रिजल्ट्स में यही है कि पहला PR1 आइडेंटिफाई किए थे, कैप डोमेन की बेस के ऊपर डिटेल है उनकी, वो टेबल 1 के अंदर आपने दी हुई होगी, जिसके अंदर आपने उसकी सब सेलुलर वो दिया होगा, एक्सेशन टेबल, स्टार्ट एंड, वो बनाया हुआ है आप लोगों ने? अभी तक टेबल भी नहीं बनाया। अब हमने ये जो आपने प्लान है एक्सेल पे टेबल बना ले, क्रोमोसोम नंबर, ई नंबर, वो सब नंबर लिख लेना, वो किया हुआ है सर। ये इस तरह का टेबल आपने बनाना था, जिसके अंदर आपने उसको रीनेम कर दिया, स्पीकर्स आईडी। बनाया होगा पता नहीं सर, ये ऐसा किसने बीएस में पढ़ा हुआ नहीं किया, उसको दोबारा भी बनाना है तो फिर मैंने तो सबने अच्छा चले चले, फिलहाल जो आज का मैं ये टेबल भी बताता हूँ कैसे बनाना है, लेकिन फिलहाल जो मोटिव एंड डोमेन एनालिसिस कैसे लिखना है वो आपको बता देते हैं। अभी आप लोग मिनट हो गए हैं एंड यू डोंट नो इवन, ओके, वी आर वेरी बिहाइंड, वी आर वेरी मच बिहाइंड। अच्छा ये है ना कंपोजिशन ऑफ, ये इसने ना बहुत ही पीछे लिखा हुआ है, ये सिंपल इन्होंने किया हुआ है, लेकिन हमने इसे एडवांस किया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर हमने ट्री भी ऐड कर दिया और मोटिव एनालिसिस। ये नीचे वाली जो चीजें है ना, ये वाली, ये आपको यहां से मिलेगी, ये इसको HTML को ऐसे करेंगे ना, आपको यहां से ये मिल जाएंगी चीजें ये। ठीक है, इसके अंदर ये है। और अगर आपने हर मोटिव की स्ट्रक्चर वो सीक्वेंस सीक्वेंस लेनी है तो आप यहां से मिल जाएगी आपको। यहाँ पर ये देखो ना, हर मोटिव की सीक्वेंस ये है। ठीक है, अब आपने ये मालूम करना है कि इस सीक्वेंस का फंक्शन क्या है, किस डोमेन की ये सीक्वेंस है। तो आप इसको जस्ट यहाँ से कॉपी करो, वाटर फाइंडर में जाके फाइंड आउट कर ले कैसे। आप इसको जस्ट ये देखो ना, मैं आपको इसको बता देता हूँ कि आपने यहाँ तक इसको कॉपी किया और इसको एक्सेल में ले गए, इसको पेस्ट कर दिया। अब आपने जो पहला और थर्ड कॉलम है ना, और इसको आपने कॉपी किया, इसको बना दिया फास्ट ए में, इसमें कन्वर्ट कर दिया। आपने सीक्वेंस में जाके, आपसे तो ज्यादा एडवांस ये दीज गाइस फ्रॉम अफगानिस्तान है। ठीक है, who started it late but they are much faster than you guys, टेबल टू फास्टा करके आपने ये कर दिया। अब हमने ये कॉपी करके हर टेबल, अब हमने इसको क्या करना है, मोटिव फाइंडर में जाएंगे, क्या करेंगे, मोटिव फाइंडर में जाके हर मोटिव का हम मालूम करेंगे वो किस डोमेन का पार्ट है। तो हर जब हमें ये पता चलेगा वो किस डोमेन का पार्ट है, हमें उसका फंक्शन भी पता चल जाएगा, व्हाट कुड बी द फंक्शन ऑफ दैट स्पेसिफिक मोटिव। ठीक है, अब इसको सर्च किया तो ये बता दिया कि फर्स्ट और थर्ड वाला कैप डोमेन का पार्ट है, बाकी जो है उनका अभी तक अननोन फंक्शन है, बाकी जितने जितने भी मोटिव है आर नॉट स्टिल नोन। ठीक है, जो क्लासिफाइड नहीं है, समझ आ गई। इट मीन 1 और 3 वाला जो मोटिव होगा, दैट अगर वो जिस जिसके अंदर होगा तो वो दैट डेफिनेटली बी अ वेरी, हर एक के अंदर 1 और 3 वाला तो लाजमी होना चाहिए, 1 और 3 वाला तो लाजमी होना चाहिए, तो वो कैप डोमेन होगी, तो वो कैप डोमेन उसके अंदर सही होगी, इंटैक्ट होगी। ठीक है, तो इस तरह ये। अच्छा, अब आपने इसका रिजल्ट कैसे लिखना है, ये इसको देखिए, कंजर्व मोटिव है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंजर्व, ये देखो इन्होंने ये जीन स्ट्रक्चर एनालिसिस अलग किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद श्री स्ट्रक्चर ये बाद में देखते हैं, इसके बारे में क्या करना है। 3 डायमेंशनल सिस एलिमेंट एनालिसिस भी किया हुआ है आप लोगों ने, ये भी किया हुआ है ना, वेरी गुड। ये इट मीन आपने एडवांस चीजें कर ली हैं, अभी वो बेसिक वाला रह गया है। ठीक है, अब ये इसमें, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर टू एनालाइज द डाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ कंजर्व मोटिव सीक्वेंस ऑफ 20 वर एनालाइज बाय अप्लाइंग, इन्होंने 20 PR1, आपकी कितनी है, हाउ मेनी योर्स, 15 है, तो आपने 15 लिख देना। वर ओवरऑल 10 मोटिव, आपने भी 10 ही मोटिव किए हैं। ठीक है, ऑफ विच 2 वर डिटेक्टेड इन एवरी PR1 and 3, मोटिव 1 and 3 वर डिटेक्टेड इन, ठीक है, वही कहानी जो हमने की है यहाँ पर ना। ठीक है, whereas the other motive such as 8 were detected in only, कौन कौन से किसके अंदर है, कौन कौन से किसके अंदर नहीं है, वो आपने यहाँ पर लिख देना है कि किस के अंदर कौन से मोटिव मिले हैं और कौन से मोटिव किसके अंदर
इस तरह कहानी आपने आप लिखोगी तो कॉपी पेस्ट करके कुछ लिखना स्टार्ट करोगे तो समझ आएगी ना। कोई के साथ लिखना नहीं होता, लिखना नहीं होता, लिखना नहीं होता, तो ये ऐसे तो ना होगा। तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। सर बड़ा मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। मुश्किल तो क्या है इसमें, आपने कॉपी पेस्ट ही करना है कुछ ना। ये कम से कम कुछ स्टार्ट करेंगे तो आएगा ना। तो दिस इज, हाँ बाकी तो ये आपने बस इसको कॉपी पेस्ट ही करना है, और वो चीजें हैं आपने करते जाना है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ आपने ये बताना है कि ये मोटिव्स है, इतने मोटिव्स है, इतने 1 और 3 हर एक के अंदर है। बाकी जो 4, 5, 6 आर प्रेजेंट इन ओनली दीज एंड दीज आर ओनली प्रेजेंट इन दीज। बेस्ड ऑन दैट वी डिवाइडेड इनटू। अच्छा, अब हमने क्या किया कि मोटिव की बेस के ऊपर उसको क्लासीफाई कर लिया। मोटिव की बेस के ऊपर उसको क्लासीफाई कर लिया कि ये 3 जो कैप जीन्स हैं, they are belong to one group because these all 3 have the same number of motive। like आप आपके मुताबिक कौन से ऐसे मोटिव्स होंगे जो एक ही तरह के होंगे। आप ये देखिए बच्चों, ये है, इसमें देखिए कि ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये जो ऊपर वाले 3 है सेम है। नहीं, ये देखिए ना, उसमें ऑलमोस्ट एक ही। तो ऊपर वाले 2 सिमिलर क्यों हैं? वो ये देखो ना, आप यहाँ पर देखो ना बच्चों, ये और ये इन दोनों के अंदर काफी तक सिमिलरिटी है पहले 2 के अंदर। लेकिन तीसरा इससे डिफरेंट है, डिफरेंट क्लेड में आता है, क्योंकि उसके अंदर लास्ट में 4 है और बाकी सब सिमिलर है। दैट्स व्हाई दे आर इन द डिफरेंट क्लेड, दैट्स व्हाई दे आर इन द डिफरेंट। सिमिलरली जो नीचे वाले हैं उसके अंदर वो सेम पैटर्न है, जो उससे निचले हैं वो उससे सेम पैटर्न वाले हैं। जो इस तरह ये सेम बेस्ड ऑन दैट मोटिव पैटर्न एनालिसिस दे आर ग्रुप्ड इनटू। आपने इसको डिफरेंट ग्रुप्स में भी कन्वर्ट करना है इसको। अगर आप इसको फिर इसको एडिट कर लें यूजिंग कोई ऐसी चीज के थ्रू, लाइक पेंट के अंदर जाकर इसको क्लासिफाई और कर देंगे, ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है। समझ आ रही है आपको? ये प्लेयर्स को तो समझ आ रहा है कि ये मतलब ये बताने का ना। अच्छा, हम इसमें एक्चुअली डाइवर्सिटी मालूम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, मैंने कहा था कि आपने ना इसमें डाइवर्सिटी मालूम करनी है कि कितने जीन्स एक दूसरे से, कौन से जीन्स आपस में सिमिलर हैं। यही हमारा मकसद यही है कि हम ना डिफरेंट तरीकों के बेस के ऊपर इसको क्लासिफाई कर लें, डिफरेंट बेस के ऊपर। फिर देखें कि फिर हमें पता, ये मोटिव का एक्चुअली फंक्शन में मालूम करने का मतलब यही था कि किस मोटिव का क्या फंक्शन है। लेकिन यहाँ तक ओके ओके, जस्ट मैं आपको अब इसका बता दूं कि इसकी डिस्कशन कैसे लिखनी है, जस्ट लास्ट। उसके बाद तक कल कल इंशाल्लाह बाकी चीजें हम आपको, ठीक है या लास्ट ये है कि आपने इसका फंक्शन रिजल्ट्स में जाना है, डिस्कशन में जाना है आपने। पीआर मेजर प्रोटीन हाउ प्रोटीन डिफेंस अगेंस्ट एबायोटिक एंड डिस्कशन के अंदर भी आपने ये देख लेना है कि यहाँ पर इनको एंड टर्मिनल के ऊपर कौन सी प्रोटीन्स हैं और इसका कैसे आपने लिखना है। बिकॉज सीवियर मोटिवेटेड इंटरेक्शन बिटवीन द स्टेरॉइड कंसीडर फॉर द एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ PR1 इन द टोमेटो इनहिबिटरी इफेक्ट। आपने इसको कॉपी पेस्ट करते जाए, इंशाल्लाह यू विल फाइंड द कि हाउ टू राइट द डिस्कशन। ठीक है, होपफुली यू एंजॉय टुडेज लेक्चर। I was the